Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is English language learning, a functional approach. This one is the unit 3 of teaching of English second year, DLED second year. So in this unit we are going to learn about how English language is built up, what are the different kind of approaches by which we can learn English better in a better way. So start. इंट्रोडक्शन में क्या है, हम अप्रोचेस की बात करेंगे. अप्रोचेस क्या होती हैं? द वे, द पाथ बाय विच वी आर डूइंग समथिंग. तो हम जैसे किसी चीज को करने की कोशिश करते हैं वो हमारी अप्रोच कहलाती है. तो अकेडमिकली हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी है यूएसए, यूके और फिनलैंड की एजुकेशन से, बिकॉज वहाँ पे लिटरेचर एंड रिसर्च के वर्क होते रहते हैं. तो जो इफेक्टिव चीज़ें हैं हमने एज इट इज ऑप्ट भी की. So there are mainly 4 kind of approaches in teaching or learning English. First one is the structural, situational, communicative, constructive. So we are going to learn and we are going to discuss about these 4 one by one. First is structural approach. Structural approach क्या होती है? Structural approach थी roots are in the behaviorist paradigm. Behaviorism जानते हो ना आप? तो behaviorist theory से ये बहुत ज़्यादा affected थी. It is also related with the stimulus response theory, which is given by Vygotsky. The process is repeated until many structures are mastered in this approach. Many structures are mastered का मतलब है like if we are talking about the English grammar, so हम सब ने ना tense याद किए थे तो एक sequence याद करी होगी. Subject plus verb की first form के साथ ing plus object, ऐसा करके आप सबने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा. So this is a kind of structure in which you have to learn about or you have to master about the one structure firstly, primarily. So structure approach कब origin हुई थी? In the time of World War II. It was mainly used to train the soldier. जब जो soldier हमारे जिन soldiers को English नहीं आती थी उन्हें ट्रेन करने के लिए कि कैसे वो बात करें, कैसे एक दूसरे की communication को betterly समझें, तो structural approach की बात कही थी. And structural approach is also known as oral approach. Both are pronounced as a oral, but this mean audio क्या करते हैं आप? सुनते हैं ना. So oral is related with the listening and oral is related with the speaking. So structural approach is both kind of using both kind of procedure, oral, audio and oral the speaking. In our language there is a phonemes like sounds of alphabet, G, morphemes, the smallest meaningful units such as pan, dog, etc. Words, the smallest meaningful units that have a function to perform content word, जिसमें आप content word कर सकते हो, perform just like cycle, book. And structural word a and the or. And structures, the word order such as a subject, verb, subject, object and verb. These are the structure of the sentences. And next आता है हमारे sentences and their type. So we can say that sentences are the type of message. Yes, sentences are the combination of words which are meaningful. So there are kinds of sentences. हमने पिछली यूनिट में किया है. Go and check that video unit 2, जिसमें हमने जाना what are the different kinds of sentences like complex, compound, declarative, interrogative, simple sentences. So when we are talking about the structural approach, so structural approach में आपके sentence को कैसे determine करना है, how to make a sentence, what are the type of structure of the sentences is known as structural approach. So next, consider the sentence pattern. How we are communicating or we are writing the sentences in English. So there are 3 main function. क्या है? Subject, verb and object. So like for example, Ramesh played the piano, Geeta cooked a meal. So we know that Ramesh is a subject, played verb हो जाएगी and piano हमारा object हो जाएगा. तो structure में आपको ध्यान रखना है कि we have the criteria of selection of words कि आपको कैसे करना है, किस form में उन्हें रखना है, and how we are regularly and frequently using these criteria to make the sentence. Next, structure is also are also graded, put in the suitable order. Put in the stable order मैंने आपको अभी बताया कि we have to put firstly subject, verb and then object. आप ये मत बोलना कि मैम हम इसे reported speech में change कर देते हैं. Yes, this one is also there, but mainly structure की बात कर रही हूँ मैं. And this approach is also known as oral approach because it mainly stresses on how learners speak the language and how learner hear the language, how learner listen the language. So we can say that this type of approaches totally depend on the
speaking and listening. What are the principles of structural approach? Importance of speech. मैंने अभी कहा कि it is mainly depend on the speaking and listening. So आप कैसे बात करते हो, what are your communicating style, how you are pronouncing the words, these are the importance of a speech. Next है language habit formation. Structure approach is telling us that we have to priorly master on a one kind of structure, that is subject verb plus object. So हमें एक चीज की हैबिट फॉर्मेशन करनी होगी, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट वन, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग. एज वी नो from the last to last slide, this structural approach is come in view after the World War II, and this one is used in the World War II because there are many soldiers who do not know about the speaking and listening of English language. To build their vocabulary and to build their English language speaking, this structural approach come in light. So it is activity based learning because we are speaking or listening different kind of words at a time. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूजफुलनेस. काम तो आ रही है ना, क्योंकि बोलना सीख रहे हो आप, कम्युनिकेट करना सीख रहे हो, इंटरेक्ट करना सीख रहे हैं, और हम मास्टर करना सीख रहे हैं किसी एक चीज के लिए. एडवांटेजेस की बात करूँ तो स्पीच एंड प्रोनाउंसिएशन बढ़ेगी, हैबिट फॉर्मेशन बढ़ेगी, बिकॉज वी आर मास्टरिंग, वी आर प्रैक्टिसाइजिंग दैट स्ट्रक्चर अगेन एंड अगेन टू गेन द मास्टरी. सो वी हैव टू बी कॉम्पिटेंट ऑन दैट. क्रिएट इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन ऑफ लर्नर. जो बच्चों का इंटरेस्ट है, उनका मोटिवेशन है, उसे इनहेंस करने में काम आती है. एंड दिस वन इज अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच बिकॉज if you are talking about a small kid, we have to tell them a structure at which they are going to perform that whole activity. नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच. इम्फेसिस ऑन द ओरल ड्रिल्स. आपको ज्यादा से ज्यादा बोल के चीजों को करना है. वी हैव टू प्रैक्टिसाइज और वी हैव टू प्रोनाउंस अ वर्ड मैनी अ टाइम. टिल देन यू आर नॉट एबल टू रिपीट दैट वर्ड परफेक्टली. नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. डिफिकल्टी है मतलब आप लर्निंग में कुछ करके नहीं देख रहे हो, आप कोई अंडरस्टैंडिंग शो नहीं कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है. टेक्स्ट बुक इंडिया की ऐसे डिजाइन नहीं है कि हम पूरा एक फॉर्मेट बता रहे हैं, उस पर ही काम कराते जा रहे हैं, और सारी लिटरेचर को पढ़ाने में भी हेल्पफुल नहीं है. नॉट सुटेबल फॉर द हायर क्लासेस बिकॉज इन हायर क्लासेस वी आर एट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल. सो यू ऑल नो दैट देयर आर 3 लेवल ऑफ लर्निंग. नेक्स्ट है लेस नॉलेज ऑफ ग्रामर. नॉलेज कम ग्रामर की नॉलेज होती है क्योंकि हम तो रट्टा मारने में लगे हुए हैं. ट्रेन टीचर्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज उन्हें ही मास्टरी करानी आएगी उस चीज के ऊपर. तो स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या हुई हमारी, एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ऑरल अप्रोच है, ये तो बिल्कुल ही ध्यान रखना है. इट गिव यू द स्ट्रक्चर एंड वी हैव टू फॉलो दैट फॉर्मेट. आपको वो फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा. एंड इन्हीं के अंदर आपको स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंदर ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब तक कॉम्पिटेंसी गेन नहीं कर लेते हो, आप उस पर मैस्टरी गेन नहीं कर लेते हो, आप चीजों को रिपीट करते रहोगे. एंड देयर इज अ लिटिल बिट कहूंगी डिसएडवांटेज काइंड, क्योंकि हम स्पीकिंग पर ज्यादा ध्यान दें. नेक्स्ट आती है हमारी सिचुएशनल अप्रोच. अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक मोनिका गोज टू स्कूल. मोनिका स्कूल जाती है. मोनिका इज गोइंग टू स्कूल. मोनिका स्कूल जा रही है. मोनिका वेंट टू स्कूल. मोनिका स्कूल गई. मोनिका विल गो टू स्कूल. मोनिका स्कूल जाएगी. तो मेरे पास एक सब्जेक्ट है दैट इज मोनिका, और मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ. आई रिलेट दैट मोनिका टू द डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन की गई, जा रही है या जाएगी, ऐसे मैंने उसे सिचुएशन पे डाल दिया है. तो सिचुएशन अप्रोच इज अ स्टेप फॉरवर्ड टू द स्ट्रक्चरल अप्रोच. इन दिस अप्रोच वी आर डीलिंग और वी आर लर्निंग फ्रॉम द सिचुएशन. So situation approach are developed by the British applied linguistic between the 1930 और 1960 के बीच में से अप्लाई किया गया है. Its roots are also dependent on the behaviorist, क्योंकि behaviorist ये कहते हैं कि आप अपने व्यवहार में जब उन चीजों को ले आओगे तो उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा. बट इस अप्रोच का ये फायदा है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द ग्रामर से भी रिलेटेड है. ग्रामर कंट्रोल है इसके ऊपर. इससे ये माना जाता है कि जब आपके पास लैंग्वेज के ऊपर अच्छा कंट्रोल होगा तो आप उसे रीडिंग भी कर सकते हैं एंड यू कैन गो फार फॉर द सब्जेक्ट. और इसमें क्लासिफिकेशन भी कर सकते हो, आपको कैसे सेंटेंसेस करने हैं, कैसे असिस्ट करना है और कैसे उन चीजों को जानना है. नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अप्रोच. स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द स्पीच पे काम कर रही है, क्योंकि हमने कंटेक्चुअल तो बना दिया है, रिटन फॉर्म के बारे में भी बात कर रहे हैं, बट ओरल इज मच मोर देन द रिटन वर्क एंड इट विल कंट्रोल योर लिंग्विस्टिक एक्सेंट कैसा रहेगा. कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे भी बात करेंगे. एंड जो हमारी
सिचुएशनल अप्रोचेस हैं, इसके अंदर वोकैबुलरी को आपको ऐसे चूज करना है बिकॉज वी हैव टू डील विद द सिचुएशन, दैट सिचुएशन इन पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट. यू हैव टू मेक योर वर्ड्स दैट मच परफेक्ट, यू कैन बिल्ड योर वोकैबुलरी लाइक द सिचुएशन ऑल्सो. दिस इज अ पैन, तो आप यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, पेन भी आ सकता है, बुक भी आ सकता है, रूलर आ सकते हैं, पर रूलर आ सकता है, बट आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग डील करना है कि यहाँ पे क्या मेन फिट होगा. इफ आई एम सेइंग कि दिस इज अ, तो आप आराम से बता सकोगे कि मैम इज टॉकिंग अबाउट पेन, दिस इज अ पेन. एंड सिचुएशन अप्रोच ऑल्सो एम्प्लॉयज ऑन द सिचुएशन. न्यू सेंटेंसेस की फॉर्मेशन जैसे भी आप करोगे, उन्हें प्रैक्टिसाइज करोगे, ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं, पिक्चर दे सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. एंड टेक्स्ट बुक को और लेसन प्लान को ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे कि वी आर गोइंग टू टीच देम अ ग्रामेटिकल सेंटेंसेस in which they can easily make the structure of that sentence and make their sentences situational based. तो हमें अपनी स्पीचिंग, रीडिंग एंड राइटिंग पे काम करना पड़ेगा और सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंग हमें अपना ग्रामर को कंट्रोल करना पड़ेगा. वट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द सिचुएशनल अप्रोच? फर्स्ट है यूजिंग सिचुएशन. आपको जो स्थितियां, परिस्थितियां हैं, कॉन्टेक्स्ट है, आपको उनके बारे में बात करनी है और उन्हीं से अपना पूरा सेंटेंस क्रिएट करना है. इट ऑल्सो रिलेटेड विद द ओरल प्रेजेंटेशन, हाउ टू स्पीक, हाउ टू बिल्ड एंड हाउ टू क्रिएट द सिचुएशन. क्योंकि आप लिखने से ज्यादा बात करते हो कि मैंने ये काम किया, मैं या ये काम करने वाली हूँ, तो सिचुएशनल अप्रोच इज ऑल्सो डीलिंग विद द oral रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट है वोकैबुलरी सिलेक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें वर्ड गो कब सिलेक्ट करना है, गोज कब सिलेक्ट करना है, वेंट कब सिलेक्ट करना है, ये चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा. एंड प्रिंसिपल टू सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. सबसे पहले बच्चों को छोटी चीजें सिखाई जाएंगी, जैसे गो सिखा दिया, गो सिखा दिया, फिर हमने गोइंग सिखा दिया, वेंट सिखा दिया. ऐसे हम चीजों को आगे लेके चलेंगे. एंड प्रिंसिपल ऑफ क्वेश्चनिंग, यहाँ पे आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी पुट कर सकते हो. नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ सिचुएशनल अप्रोच. इजी प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल. आप मटेरियल को इजीली प्रेजेंट कर सकते हो कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो एंड इन विच सिचुएशन और एट विच टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट. इंट्रोडक्शन टू वोकैबुलरी, बिकॉज वी हैव टू बिल्ड आवर वोकैबुलरी. इन लास्ट यूनिट वी आर टॉकिंग अबाउट इफ यू हैव टू बिल्ड आवर वोकैबुलरी वी हैव टू डील विद द ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इंग्लिश. सो वोकैबुलरी को बिल्ड करने के लिए अगर हमें इंग्लिश के हर एक कॉन्सेप्ट को जानना है तो हमें टेंसेस को भी जानना पड़ेगा एंड वर्ब फॉर्म क्या क्या रहेंगे उनके बारे में भी. इससे आपकी इफेक्टिव रहेगी टीचिंग. देन एम्फेसिस ऑन द लिसनिंग स्किल ऑल्सो. आप सुन कैसे रहे हो, क्योंकि अगर मैंने कहा कि गई, वो जा चुकी है स्कूल, तो उसके बारे में भी आपने सुना है एंड देन यू कैन कन्वे द मैसेज आगे. एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग है, बिकॉज वी आर डूइंग द एक्टिविटी, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट सिचुएशन. डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिचुएशनल, डिफिकल्ट फॉर द टीचर कि हर बार आप सिचुएशन क्रिएट कर पाओ ये जरूरी नहीं. नो लर्नर कंट्रोल ओवर लर्निंग. कैसे लर्निंग करनी है, कितनी करनी है, देयर इज अ नो कंट्रोल ऑफ लर्नर. सुटेबल, नॉट सुटेबल फॉर द ऑल फॉर्म ऑफ द लिटरेचर. लिटरेचर की हर एक सिचुएशन ऐसे नहीं पढ़ाई जा सकती, बिकॉज वी आर समटाइम्स यू आर टॉकिंग अबाउट द जस्ट पास्ट. अगर बायोग्राफी पढ़ रहे हो, किसी कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, किसी की लाइफ के बारे में आपने जानना है, तो हम पास्ट में ही बात कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर कैसे जोड़ोगे, प्रेजेंट कैसे जोड़ोगे, हायर क्लासेस के लिए भी सूटेबल नहीं है. एंड ऑल वोकैबुलरी इज नॉट गोइंग टू टीच विद दिस अप्रोच. नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव अप्रोच. कम्युनिकेटिव अप्रोच जो आपने नोम चॉम्स्की का नाम सुना होगा. नोम चॉम्स्की ने एक चीज दी थी, लेड, LAD. L लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. तो इनका क्या मानना था कि लैंग्वेज कैन बी टॉट एंड लर्न इजीली. कोई भी लैंग्वेज को आसानी से समझ सकता है और लर्न कर सकता है, बट इसके लिए अगर आप सेकेंड लैंग्वेज की बात करोगे तो थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मेमोराइजेशन करना पड़ेगा. एंड माइकल हॉलिडे एंड डेल हाइम्स 1970 में कहा कि कम्युनिकेटिव अप्रोच फाउंड इन द कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे मिलती है. कम्युनिकेटिव अप्रोच किस चीज पे डिपेंड करेंगी, जब मैंने वर्ड ही बोल दिया कम्युनिकेशन, सो देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन बोथ द मीन्स एंड द एंड ऑफ द लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन. मतलब अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, हम दोनों की कोई भी ये फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हम सबकी ये मेनली सबकी ये सेकेंड लैंग्वेज ही है. तो इसको याद करने के लिए हमें फोकस करना पड़ेगा और हमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करना पड़ेगा. आप किसी भी इंग्लिश सिखाने वाले सेंटर पे सुनते हो या कोई आपने वीडियो देख ली, वॉइस नोट देख लिए, तो वो क्या कहते हैं, गलत बोलो पर बोलो. तो कम्युनिकेट करो. कम्युनिकेट करने से ये होगा कि आप इंटरेक्ट कर पाएंगे, आपके पास ऑथेंटिक टेक्स्ट होंगे, आप मेमोराइज कर पाओगे एंड learner can encourage itself to maintain their vocabulary in the classroom and outside of the classroom. एंड मैंने कहा था नॉम चॉम्स्की, तो नॉम चॉम्स्की ने ये कहा था कि सब बच्चे या जो भी है सब पैदा होते हैं, उनके पास एक LAD होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसके द्वारा वो लैंग्वेज को अचीव कर सकते, लैंग्वेज को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं.
सम एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटी डिजाइन दिस अप्रोच रोल प्ले। रोल प्ले में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा पर्सन एक दूसरे का किसी का रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो इंटरेक्ट कर रहे होते हो कि उन्होंने कैसे काम किए, क्या किया था। इंटरव्यूज ऑल्सो टू एंड प्रोसेस इन विच यू आर इंटरव्यूअर इज आस्किंग द क्वेश्चन एंड इंटरव्यू इज गिविंग द आंसर फॉर दैट वन। नेक्स्ट है ग्रुप वन, ग्रुप वर्क आप जब भी करते हो यू हैव टू टॉक विद द another member of the group. Opinion sharing is also a kind of कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है स्क्वेंजर हंट, ये आपके लिए थोड़ा नया होगा। स्क्वेंजर हंट होते हैं, लाइक आई एम गिविंग द एग्जांपल। स्क्वेंजर हंट होता है कि आपको कोई भी एक ऐसा सेंटेंस बोल देना जिसके लिए आप सब रिएक्ट कर रहे हो या इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक इफ आई एम टेलिंग tell me about the conceptual approach या tell me about the communicative approach, the student who is wearing the yellow color will tell me the this approach। तो ये मेरा स्क्वेंजर हंट है। मैंने ये बोल दिया कि आज जिसका बर्थडे है वो आंसर करेगा, जिसका नवंबर में बर्थडे है, दिसंबर में बर्थडे है, वो आंसर करेंगे। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्क्वेंजर हंट इन विच यू आर talking about the some specific kind of thing and the person related with that thing to answer that। नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर। रोल ऑफ टीचर क्या है, टीचर्स को ऐसी एक्टिविटी डिजाइन करनी है जिसके अंदर बच्चे जो हैं इफेक्टिवली बात कर पाए और एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए। इवेल्युएशन कैसे करना है, इवेल्युएशन इन दिस अप्रोच इज ऑल्सो डन इनफॉर्मली। इनफॉर्मली का मतलब है को कम्युनिकेटर कैसा रहेगा, आपकी परफॉर्मेंस उस पर भी डिपेंड करेगी, बिकॉज इफ अ लर्नर इज गोइंग टू राइट दैट थिंग तो उस पर ही डिपेंड करेगी, बट इफ अ लर्नर इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द अनदर वन तो इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि सामने वाले कैसा फीडबैक दे रहा है और कितना अंडरस्टैंड कर रहा है, देन दैट पर्सन इज गोइंग टू कन्वे देयर मैसेज इफेक्टिवली। प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब हाउ यू हैव टू इनकोड दैट मैसेज, डिकोड कैसे करना है, कैसे आपको एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, व्हाट इज द कंटेंट यू हैव जिस पे आप बात कर रहे हो। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज, जैसे रोल प्ले बात थी, ग्रुप वर्क बात थी, इन एक्टिविटीज का ध्यान करना है। और कम्युनिकेशन इज ऑल्सो डन बाय डूइंग। if you are doing, if you are interacting, then you can learn language very easily। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज फंक्शंस, इसके क्या क्या कार्य रहेंगे, वोकैबुलरी बिल्ड करना है, कम्युनिकेट करना है, इंटरेक्शन शो करना है, फीडबैक लेना है, अडेप्ट करना है सिचुएशंस के अंडर, और अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करने के लिए न्यू वर्ड्स का लर्निंग करनी है। एंड ऑथेंटिक मटेरियल, मैंने कहा कि दिस इज अ पेन, तो यू हैव टू इंटरेक्ट ऑन दैट पेन ऑल्सो। तो हमें जिस भी चीज़ पे बात करनी है वो मटेरियल बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए। ऑथेंटिक होने का मतलब है स्टूडेंट्स के पास उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए और उसके पीछे कोई फैक्चुअल चीज़ें भी होनी चाहिए जिससे बच्चा जान पाए। एडवांटेजेस क्या होंगी, लर्नर का मोटिवेशन इंक्रीज करेगा, बिकॉज जब भी हम इंटरेक्शन की बात आती है तो हम जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी बिल्ड बिकॉज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। वी आर इंटरेक्टिंग विद द नंबर ऑफ पीपल टू बिल्ड आर इंग्लिश लैंग्वेज वोकैबुलरी। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कैसे है, क्योंकि हम बात करके देख रहे हैं, वी आर प्रैक्टिसाइजिंग एंड दिस अप्रोच इज ऑल्सो अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। बच्चे को जैसे बात करनी है, जितनी बात करनी है, ये बच्चे पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है नो टीचिंग ऑफ ग्रामर। यहाँ पे कोई भी ग्रामर की बात नहीं हो रही है, मैंने कहा सिर्फ तुम्हें बात करनी है, कैसे करनी है, कितनी गलत आप कर रहे हो। देर इज अ नो काइंड ऑफ बार या नो काइंड ऑफ लिमिटेशन इन दिस अप्रोच। ट्रेन टीचर चाहिए जो अच्छे से कम्युनिकेट करा पाए। आउटकम्स नॉट नोन, क्या आउटकम है, बच्चा अगर 4 सेंटेंस बोल रहा है, कोई 10 सेंटेंस बोल रहा है, वो किस टॉपिक पे बोल रहा है, आप इसे कैसे जज कर पाओगे। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट आपने काफी सुना होगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट इज वर्ड मेड अप ऑफ द वर्ड कंस्ट्रक्ट इन विच यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पे डिपेंड करती है। जॉन डीवी और जीन प्याजे से काफी इन्फ्लुएंस है, एंड लेव वाइगोस्की से भी इन्फ्लुएंसेस है, बिकॉज लेव वाइगोस्की जो थे हमारे सोशल कल्चरल सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, जिसके अंदर ये माना गया है कि लर्नर्स को अपने एक्सपीरियंस को इनलार्ज करना चाहिए एंड लर्नर्स हैव टू अकोमोडेट मैनी काइंड ऑफ वर्ड्स इन देयर लर्निंग डिवाइसेस। इसके बाद है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में क्या कहा गया है कि लर्नर्स को टेबुला रासा नहीं माना गया। मतलब टेबुला रासा होता है ब्लैंक स्लेट, ब्लैंक स्लेट बिल्कुल भी नहीं माना गया है, बिकॉज एवरी चाइल्ड हैज सम प्रायर एक्सपीरियंस एंड बिकॉज बेसिस ऑफ दैट प्रायर एक्सपीरियंस शी और ही कैन रिफ्लेक्ट दैट एक्सपीरियंस टू द न्यू फॉर्म। तो यहाँ पे ये माना गया कि सबके पास कुछ प्रायर नॉलेज है और उसी नॉलेज का प्रयोग करके दैट चाइल्ड कैन बिल्ड अप देयर आइडियाज, देयर व्यू पॉइंट, देयर ओपिनियन, और ऐसे अपनी चीजों को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, बना सकता है। लर्निंग इन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इज एक्टिव। लर्निंग एक्टिव है, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड है, और मेंटली बच्चे प्रिपेयर रहते हैं कि हाउ टू ऑर्गेनाइज, एंड दिस एक्सपीरियंस इज ऑल्सो अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बिकॉज द चाइल्ड इज डूइंग द एक्टिविटी फर्स्ट हैंड। तो अपने आप ही वो कर रहा है, क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, अपना व्यू पॉइंट बना रहा है, अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, चीजों को क्रिएट कर रहा है, ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड कर रहा है, एंड स्टूडेंट हैव टू मेंटेन द इंटरेक्शन
बाय बिल्डिंग देयर रिफ्लेक्टिव लेवल, क्योंकि जब बच्चा बड़ी क्लासेस में आता है तब वो कंस्ट्रक्ट करना बहुत अच्छे से सीख सकता है। एक्टिविटी क्या क्या करा सकते हो? क्लास डिस्कशन, क्योंकि छोटे बच्चे डिस्कशन बहुत कम कर पाते हैं। क्लास डिस्कशन बच्चे बड़े कर सकते हैं, डिबेट्स कर सकते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, फील्ड ट्रिप लेके जा सकते हो आप, फिल्म्स शो कर सकते हैं जिसके अंदर कोई भी लर्निंग हो रही है। एंड ऑनलाइन लर्निंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, बिकॉज चाइल्ड कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी सीख सकता है। प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, बिकॉज मैंने कहा कि द चाइल्ड इज नॉट द लर्नर इज नॉट अ टेबुला रासा, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस पहले से लेके बैठा है और उन्हीं एक्सपीरियंसेस को वो आगे गेन कर रहा है। सो प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, बिकॉज मैंने कहा कि बच्चे टेबुला रासा बिल्कुल भी नहीं है, दे हैव द प्रायर एक्सपीरियंसेस और उन्हीं का प्रयोग करके वो नई एक्विजिशन सीख रहे हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी। लर्नर ऑटोनॉमी का मतलब है लर्नर इज ऑटो जनरेटेड, मतलब वो अपने आप अपनी स्वयं अपनी पेस पे चीजें कर सकता है। एक्शन ओरिएंटेडनेस है, जैसा काम करोगे जैसे करके दिखा रहे हो तो आप चाइल्ड सेंटर्ड, दिस वन इज ऑल्सो चाइल्ड सेंटर्ड। तो फोकस ऑन द प्रोसेस रादर देन द प्रोडक्ट, आपने क्या काम किया, कैसे किया, वो ज्यादा डिपेंडेंसी है, आपने कितना किया वो नहीं है। वर्ल्ड लैंग्वेज, पूरी लैंग्वेज आप इससे सीख सकते हो, बिकॉज वी आर कंस्ट्रक्टिंग द व्यू पॉइंट्स। स्कैफोल्डिंग है, द रोल ऑफ द टीचर इज टू गिविंग द सपोर्ट टू दैट चाइल्ड एंड केटरिंग द मल्टीपल इंटेलिजेंस, काफी इंटेलिजेंस जो है बच्चों की प्रयोग हो रही। एडवांटेजेस क्या है? एक्टिव लर्निंग होगी। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब एक या एक से ज्यादा कंसेप्ट यहाँ पे इंटीग्रेट करके सिखाए जा सकते हैं। ऑनरशिप ऑफ द लर्निंग, ऑनरशिप मतलब बच्चा खुद से ऑनर है उस चीज का। सोशल डेवलपमेंट होगा, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट बच्चे को मिल सकता है, मल्टीपल प्रेजेंटेशन करा सकते हैं व्हेन वी आर क्रिएटिंग, तो हम अपने व्यू पॉइंट और एड ऑन करते रहते हैं। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इज ऑल्सो बिल्ड अप विद दिस अप्रोच। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो जाएंगी? रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, टीचर को भी एक प्रोफेशनल अपनी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी कि वो भी बच्चों के सामने, बिकॉज द रोल ऑफ टीचर इज ऑल्सो डूइंग द स्कैप फोल्डिंग, बच्चों को सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है। यू नो द स्कैप फोल्डिंग, स्कैप फोल्डिंग क्या होता है? बच्चों को सपोर्ट करना। जैसे जब भी हम घर बनाते हैं, लेंटर आपने पढ़ता देखा होगा, तो ना नीचे से ऐसे फट्टे लगा दिए जाते हैं और डंडों के सारे उसे खड़ा किया जाता है, दैट इज स्कैप फोल्डिंग। तो वो करना जरूरी है। एंड लेसन्स ऑर्गेनाइज करने जरूरी है जिसमें बच्चे अपने आप चीजों को क्रिएट कर सकें, बच्चे एक्सपीरियंसेस गेन कर सकें। नेक्स्ट है टीचिंग ऑरल एक्सप्रेशन। ऑरल एक्सप्रेशन का मतलब है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, तो जब अगर मुझे किसी वर्ड पे बात करनी है तो आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दैट वर्ड, मेरी पिच हाई हो जाती है, मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्रेस करना चाहती हूँ उस चीजों को। तो व्हेन अ स्टूडेंट इज इंटरेक्टिंग इन द क्लासरूम, तो when that child have to be happy, disappointment, sad, कब क्या चीजें करनी है उस चीज के ऊपर, पॉज कब लेना है, स्लो मोशन में कब बात करनी है, पिच उसे हाई कब रखनी है, इन सारी चीजों की बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए। सो दैट इज नोन एज ओरल एक्सप्रेशन। व्हेन द चाइल्ड इज टॉकिंग और स्पीकिंग अबाउट समथिंग, ही और शी हैव टू गिव द ओरल एक्सप्रेशन। लाइक कैसे करा सकते हो एक्टिविटी? फ्रेगमेंट्री सेंटेंसेस, फ्रेगमेंट्री सेंटेंसेस होते हैं, आपने कोई सेंटेंस लिखा, लाइक मैंने लिखा था दिस इज और फिर डैश लगा के मेरे पास ऑप्शन थे बुक, पेन, बोर्ड, ऐसे करके, तो यहाँ पे ये फ्रेगमेंट्री सेंटेंसेस कहलाते हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन नाम से समझ आ रहा होगा, वेयर वी हैव टू रिप्रोड्यूस आवर फैक्ट्स, ओपिनियंस, थॉट्स। नेक्स्ट है रीडिंग अलाउड, बच्चे को बहुत ज्यादा जोर जोर से बुलवा के, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा यही काम कराया जाता है, वी हैव टू रीड दैट वर्ड और दैट सेंटेंसेस वेरी लाउडली। लाइक बैट, बच्चे बोलते हैं BAT, बैट, देन उसका आंसर देते हैं। सो दिस इज अ रीडिंग अलाउड बाय विच द LED ऑफ द चाइल्ड कैन स्टोर द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड। रीडिंग पिक्चर्स, बच्चों के सामने पिक्चर्स रख दी जाती हैं, बच्चे उसे रीड कर रहे होते हैं। नोइंग एंड यूजिंग इंग्लिश पैरेलल फॉर द फेमिलियर नोन ऑब्जेक्ट्स, तो जैसे हमारे पास कोई भी इंग्लिश की चीजें हैं, लाइक इसमें पेन है तो मैं पेंसिल भी दिखा सकती हूँ, उसके पैरेलली क्या क्या चीज चल रही है उनके बारे में जानना। एंड रोल प्ले इज ऑल्सो काइंड ऑफ ओरल एक्सप्रेशन एक्टिविटी। टीचिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो लर्नर को सिखाने के लिए आप प्राइमरी लेवल पे मैं बात करूं तो हमारे पास साउंड सिस्टम होता है। साउंड सिस्टम ऑफ व्हाट? साउंड सिस्टम ऑफ अल्फाबेट। व्हेन वी हैव टू रीड दिस इज अ सी, और कब इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसा आ जाएगी, इसको कैसे सस्टेन करना है। इट विल बिल्ड द लिटरेचर वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इस पे कुछ चीजें, दोनों चीजें होती हैं हमारे पास, कुछ फिक्शन भी होते हैं और कुछ नॉन फिक्शन भी होते हैं। मतलब बच्चों को इंटरेस्ट कराने के लिए हम कुछ चीजें ऐसी भी दिखाते हैं जो बिल्कुल सत्य हैं, और कुछ ऐसी भी चीजें दिखाते हैं विच इज नॉट ट्रू। एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? एसेंस ऑफ रीडिंग, बच्चा पढ़ कैसे रहा है, ये बात बोली है डर्किन ने। एंड एज वेल एज द गोल ऑफ रीडिंग, ये बोला है जिगलर एंड गोस्वामी ने कि
हमारी जो रीडिंग होती है, एसेंस ऑफ रीडिंग की बात किसने की है? डर्किन ने, एंड गोल ऑफ रीडिंग की बात की है जिगलर एंड गोस्वामी ने। इट इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन रीडिंग स्किल्स, देयरफॉर देयर एबिलिटी टू ऑब्टेन एजुकेशन। ये हमारी बात की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। व्हाट इज मीन बाय दैट कि हमें बच्चों के डेवलपमेंट की, रीडिंग स्किल के डेवलपमेंट की, उनकी एबिलिटी पर डिपेंड करती है। एबिलिटी ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन दे आर टेकिंग एंड हाउ द एजुकेशन इज क्रिटिकली एग्जामिन दैट लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है नेशनल रीडिंग पैनल रिपोर्ट 2000 की बात है। ये पीछे हमने अभी बताया था, क्या था? NICHHD विच मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजीज, क्या क्या है? क्वेश्चन आंसरिंग, क्वेश्चन आंसरिंग है। क्वेश्चन आंसरिंग में क्या हो जाएगा? फैक्चुअल। फैक्चुअल का मतलब है जिनका आंसर सिर्फ फैक्ट्स में ही आप दे सकते हो, आपके पास कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जिसको आपने खुद से क्रिएट किया हो। लाइक इफ आई एम सेइंग द पेन, मैंने ये राइट कर दिया और मैंने लिखा रेड, तो आप बोलोगे यस मैम यू आर राइटिंग रेड विद द रेड, तो ये फैक्चुअल है। तो इसमें आप क्या ऐड कर सकते हो? यू हैव टू टेल मी जस्ट कलर ऑफ दैट राइटिंग वर्ड। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब है मैंने आपको 10 चीजें बताई हैं बट मेरी मेन थीम जो है मैं उस पर कन्वर्ज कर लूं। डाइवर्जेंट, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया और आप उसके बारे में और ज्यादा खोजने की कोशिश कर रहे हो, मतलब योर जो रे ऑफ लर्निंग है वो बाहर की तरफ जा रही है। इवेल्युएटिव, इवेल्युएटिव का मतलब हाउ यू लर्न, व्हाट यू लर्न, ये आपको लास्ट में एसेस करना है। एंड देन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट्स, एवरी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कि आपने कैसे किया, कितना किया, कैसे आप चीजों को फिक्स कर रहे हो, इन चीजों के बारे में जानना। नेक्स्ट है क्वेश्चन जनरेशन। अब मैंने कहा था क्वेश्चन, ये पूछने वाले थे, क्वेश्चन आंसरिंग थे, यहाँ पे बच्चा आंसर दे रहा है। नेक्स्ट में बच्चा क्या कर रहा है? नेक्स्ट में बच्चा कर रहा है क्वेश्चंस को जनरेट कर रहा है। अगर मैंने आपको एक पैराग्राफ दे दिया और बच्चे को बोला यू हैव टू जनरेट क्वेश्चन फ्रॉम दैट, तो आपको क्या क्या समझ आना चाहिए? क्लैरिफाइंग मीनिंग, आपको उसका मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। थिंक अबाउट द टेक्स्ट येट टू बी रीड, जो आपने पढ़ा है उसके बारे में सोचो, देन यू कैन फ्रेम द क्वेश्चंस। डाउट जो होंगे आपके आइडिया उसे सॉल्व कर सकते हो। डिटरमाइन ऑथर्स इंटेंट, स्टाइल, कंटेंट एंड फॉर्मेट, ऑथर ने इंटेंशनली क्या क्या चीजें बोली हैं, स्टाइल क्या है लिखने का, क्या कंटेंट है और क्या फॉर्मेट है, इससे भी आप क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो। स्पेसिफिक आंसर you have to be asked about and consider abstract questioning will take the understanding deeper into the text। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर ली है एंड यू कैन थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्टली, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है आप इमेजिनेशन कर पा रहे हो, आप चीजों को सीख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो वो एब्स्ट्रैक्टली है जिन्हें आप टच नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट है समराइजेशन। मैंने इतना बड़ा बच्चों के सामने में पहरा दिया और उसे कहा बेटा आप समराइज करो, तो समराइज करने के लिए आप क्या जानोगे? द मेन आइडिया ऑफ दैट टेक्स्ट। एंड जब भी मैं आपको कोई भी क्लासेस मैंने ली है ना, तो बहुत सारी थ्योरेटिकल वी ऑल नो बट देयर आर सम फैक्चुअल थिंग्स आल्सो। तो जब भी आप नोट्स बनाओ तो इन चीजों का ध्यान रखना, व्हाट इज द फैक्चुअल, व्हाट इज द थ्योरेटिकल। डोंट राइट द थ्योरेटिकल वन, राइट ओनली द फैक्चुअल वन। इससे आपके नोट्स बहुत ज्यादा कम स्पेस कैरी करेंगे और आपको जल्दी से लर्न भी हो जाएंगे। एंड एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, थ्योरीज को याद करो, थ्योरी को समझो, पर थ्योरी का रट्टा मत लगाओ। नेक्स्ट है कलेक्टिंग द मेन आइडिया। इफ देयर इज अ मेन आइडिया तो उसे निकाल लो, नहीं है तो कलेक्ट करो। लेस रिलीवेंट जो चीजें उन्हें हटा दो। नेक्स्ट राइटिंग द जिस्ट ऑफ द मेन आइडिया। आपकी जो जिस्ट का मतलब होता है कि हमें कंक्लूड करके लिखना है, हमारा जो बिल्कुल द मेन का भी मेन है ना, वो क्रीम चीज आपको लिखनी है। प्रिडिक्शन, अगर आपने सेंटेंसेस या कुछ पढ़ा, आपसे कुछ पूछा है तो यू कैन प्रिडिक्ट ऑन द होल लर्निंग। एंड ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म भी दिखा सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या है? वेब। दिस वन इज अ कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिसके अंदर आप मेन आइडिया को क्या कर रहे हो? ऑर्गेनाइज कर रहे हो। चार्ट मैट्रिक्स, चार्ट मैट्रिक्स से समझ आ रहा है कि वी आर कंपेयरिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस या डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ, तो हम कंपेयर कर रहे हैं। इसके बाद ट्री फॉर्मेशन, दिस इज अ हायरार्की, जो आपको माइंड मैपिंग के टाइम पे मैंने आपको बताई थी, कई सारी चीजों में बताई है, जिसे नहीं पता है वो अभी भी सुन लो। माइंड मैपिंग क्या होता है मैंने आपको ये पूरा समझा दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा यूनिट 3 में हमने जो जो अप्रोचेस लिखी, मैंने लिखी स्ट्रक्चरल, सिचुएशनल, कम्युनिकेटिव और कंस्ट्रक्टिविस्ट, इनके बारे में मैंने आगे लिख दिया। तो जब हम चीजों को बहुत एक पिक्टोरियल फॉर्म में प्लेस कर लेते हैं, ट्रीज की फॉर्म में प्लेस कर लेते हैं, तो वो मेरा ट्री कहलाता है। नेक्स्ट आती है हमारी चेन। चेन का मतलब होता है वन थिंग इज रिलेटेड विद द अदर, सो ऑर्गेनाइज द थिंग इनटू द cause of effect of another and
प्रोसीडिंग द थिंग फ्रॉम वन टू अनदर इन अ सीक्वेंस। इसके बाद आती है स्केचिंग। स्केचिंग में क्या होता है कि आप कैसे रीड करोगे, उसके लिए पिक्चर्स बना दो, बिकॉज every time you are not able to convey your message in a words, but you can convey your message in a pictorial form, and many are there जो बात करने से ज्यादा पिक्चर बनाने पे ध्यान देते हैं। Now what is cooperative learning? We all know that cooperative learning क्या होती है। DLED के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर में आ गए हो, आई थिंक सबको पता होगा cooperative learning क्या होती है। The learning in which you are learning about the cooperation with another. So we can say that the group work is a cooperative learning. Cooperative learning क्या होती है? एक दूसरे के साथ काम करना है, इंटरेक्ट करना है, टू वे काम करना है, फीडबैक पे काम करना है, अपने मास्टरी लेवल के अकॉर्डिंग काम करना है, स्किल्स के अकॉर्डिंग काम करना है। सो दिस वन इज नोन एज आर कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन मॉनिटरिंग। कॉम्प्रीहेंशन मॉनिटरिंग का मतलब लाइक इफ यू आर अ टीचर एंड गिविंग योर स्टूडेंट अ पैराग्राफ एंड यू टेल योर स्टूडेंट to make the questions from that, then you have to monitor how much students are able to comprehend from that. उन्होंने उसमें से कितना सीखा है, क्या सीखा है, कैसे सीखा है, उसकी कॉम्प्रीहेंशन करनी भी बहुत जरूरी है। सो कॉम्प्रीहेंशन इज रिलेटेड विद द अंडरस्टैंड, कि बच्चे ने कितना समझा, उसकी मॉनिटरिंग एज अ टीचर आप करोगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है टीचिंग राइटिंग कॉम्पोजिशन। टीचिंग राइटिंग कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है? देयर आर द टू एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, फर्स्ट इज हैंड राइटिंग एंड सेकंड वन इज कॉम्पोजिशन। सो आवर नेक्स्ट इज टीचिंग राइटिंग कंपोजिशन। टीचिंग राइटिंग कंपोजिशन का मतलब क्या है? हमारी जब इंग्लिश लर्निंग है, इट इज कंप्राइजेस ऑफ द टू एस्पेक्ट्स, हैंड राइटिंग एंड कंपोजिशन, व्हिच मींस हाउ अ चाइल्ड राइट एट अ अपर प्राइमरी लेवल एंड हाउ अ चाइल्ड डेवलप हिज कॉम्प्रीहेंशन व्हाइल सीइंग द थिंग्स। लाइक इफ अ चाइल्ड इज गोइंग टू टेल अबाउट द पेन, व्हाट काइंड ऑफ coordination of letter and what kind of words he or she is using to make the sentences and to make the paragraph. तो हमें जानना है कि एक अच्छी एक अच्छी राइटिंग स्किल के लिए हमें कौन कौन सी कंपोजिशन को लर्न करना पड़ेगा। सो फर्स्ट है कंट्रोल प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। कंट्रोल प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग का मतलब है बच्चे को आप ये बोल दो कि यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ थिंग इन five lines and you can limit the words of a child, तो भी बच्चा अपनी vocabulary को अच्छे से build up कर पाएगा और वो ऐसे words choose करेगा by which his number of limits can't be crossed. Next है fill in the blanks by seeing picture. This one is given for the primary level kind of students जिनको picture बना दी जाती है, like ऐसे बना दिया, fill in the blanks दे दिया. So he have to fill in the blanks by seeing the picture, fill in the blanks विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन और विदाउट एनी ऑप्शंस को बच्चों को बोल दिया जाए। स्टोरी कंप्लीशन की बात कर दी जाए, ये भी हमने बचपन में बहुत बार करी है कि हमें ब्लैंक्स मिल जाते हैं एंड वी हैव टू कंप्लीट द स्टोरी एंड मेनी अ टाइम वी हैव टू कंप्लीट द स्टोरी जस्ट बाय सीइंग द पिक्चर, ऐसे भी हमें मिलता है। एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस इज आल्सो द पार्ट ऑफ राइटिंग कंपोजिशन इन व्हिच sentences are given half or midway and student have to complete that sentences. Next है free practice of writing. Free practice see and write. बच्चों को बोल दिया जाए देखो और लिखो। ये बिल्कुल सिंपल है, जहाँ पे बच्चों को अपनी बुक खोलनी है और वहां से देख के लिखना है, तो यहाँ ये फ्री प्रैक्टिसेस है। स्टोरी राइटिंग इज आल्सो काइंड ऑफ फ्री प्रैक्टिसेस बाय व्हिच अ स्टूडेंट कैन ऐड देयर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर सेल्फ। पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग हमें बचपन में ये कराई गई है। फ्री राइटिंग जहाँ पे बच्चों को बोल देते हैं आप जो चाहते हो ना वो लिख के दिखाओ मुझे। फ्रेगमेंटरी सेंटेंसेस आर दो sentences in which subject or verbs are missing and the child have to fill the subject and verb accordingly. Writing about object, like I was giving the example of pen, people around and places, तो बच्चे को बोला जा सकता है कि आप इस पेन के बारे में लिखो, आप अपनी मम्मा के बारे में लिखो, आप अपने गांव के बारे में लिखो। These kind of essay writing we all have done in our lower classes. Next है developing written expansion in the specific situation. सबसे पहली है simple composition. Simple composition is the direct kind of writing of upper primary child in which teacher have responsibility to encourage the child and support the child, and we have to accept it our mistake, we have to engage the child and at last with the zero mistake हमें बच्चे को evaluate कर लेना है, क्योंकि हमें बच्चे की जो mistake थी वो हमें रेमेडी करा देनी है आफ्टर डायग्नोसिंग। देन हमारा अ सिंपल कंपोजिशन कंसिस्ट ऑफ ओरिजिनल एक्सपेंशन इन राइटिंग, व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन अ बच्चा जो है शेयर करना चाहता है, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट द चाइल्ड हैव टू डील विद, वो कैसे पंक्चुएशन यूज करेगा, एप्रोप्रिएट वर्ड कैसे यूज करेगा। सो ये दीज आर द पार्ट ऑफ सिंपल कंपोजिशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग दे सकते हो आप इसके अंदर, and you can tell him or her the technical grammatical terms, provide the child during their period session, मतलब जो भी उनका राइटिंग कंपोजिशन सेशन होगा उसके तहत आप ये चीजें बता सकते हो। नेक्स्ट है कॉमन मिस्टेक दैट लर्नर इंग्लिश लर्नर हैव टू मेक, या
मेड बाय द लर्नर। फर्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि आपको जैसे सब्जेक्ट लिखना था, वह गया, ही गोज टू स्कूल। सो वो कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसे ये प्लूरल में लगेंगे, सिंगुलर में लगेंगे, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज अ कॉमन मिस्टेक। नेक्स्ट है मिसिंग कोमा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट यूनिट में भी बात करी थी, तब भी ये बताया था, वी हैव टू पुट कोमा वेयर वी वांट, जहां हमें रखना, सॉरी, वी हैव टू पुट कोमा वेयर वी नीड, क्योंकि हमारा कोमा क्या था, हमें पॉज चाहिए था। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोजेस को सेपरेट करने के लिए हम कोमास लगाते हैं, तो कोमा मिसिंग होने से हमारा पूरा फ्रेज चेंज हो जाता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन इज आल्सो चेंज्ड। एंड वेयर वी हैव टू यूज द अपोस्ट्रोफी एस, एंड अपोस्ट्रोफी एस इज द पोजीशन काइंड ऑफ वर्ड। नेक्स्ट है नो कोमा इन द कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस में कोई भी कोमा नहीं लगेगा। अ कोमा सेपरेट टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज इन द कंपाउंड सेंटेंसेस स्टेटमेंट सेपरेटेड बाय अ कंजक्शन। बिकॉज कंपाउंड जब भी स्टेटमेंट की बात होती है, लास्ट यूनिट में मैंने आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस बताया था, वहां पे मैंने कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस आल्सो डिस्कस्ड। सो कोमा हमें कंपाउंड सेंटेंसेस में नहीं लगाना, बिकॉज वी आर कनेक्टिंग द टू कंपाउंड सेंटेंसेस बाय अ कंजक्शन लाइक एंड, व्हाइल, दिस काइंड ऑफ वर्ड। नेक्स्ट है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। मॉडिफायर या कोई वर्ड लगा दिया आपने, उसे कैसे सेपरेट करना है, हाउ टू डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। वेग प्रोनाउन रेफरेंसेस, लाइक अगर बच्चे को किसी चीज के लिए प्रोनाउन लिखने है, किसी नाउन के लिए, तो वहां पे भी वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसने कैसे वो प्रोनाउन बनाई है, वेयर ही हैव टू यूज वूम, आई, वी, दे, दोज, तो इनमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। रॉन्ग वर्ड यूसेज, कई बार ये होता है वी आर यूजिंग द रॉन्ग एंड इनकरेक्ट वर्ड, सो बाय विच वी कैन मिसलीड द कंपोजिशन। नेक्स्ट है लैक ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेललिज्म क्या होता है, वेयर टू और मोर पार्ट्स आर द सिमिलर काइंड ऑफ मीनिंग चल रहे हैं, तो वहां पे भी बच्चा कंफ्यूज हो सकता है टू फ्रेमिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंसेस इन अ सीरीज आइटम। Next are sentence sprawl. A sentence can be become a burden to read where there are too many equally weighted phrases. Because while we are reading or while we are telling a story, we are focusing on the main part, but in the sentence sprawl has the two or more sentences which have the equal weightage, तो भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम इसे महत्ता दें या इसे दें। लाइक अगर आप कोई चोर और पुलिस के बारे में बता रहा है, तो दोनों के एस्पेक्ट इतना बिल्डअप कर दिया गया है, दोनों को इतना अच्छा नेचर दिखा दिया गया है कि हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किसके बारे में क्या जजमेंट या क्या इवेल्युएशन पास करनी है। दैट काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर नोन एज सेंटेंस sprawl. नेक्स्ट है राइटिंग एक्सप्रेशन. हाउ वी कैन build our writing expression. First, a paragraph writing. You can easily know about the paragraph writing. You have to give in any kind of subject or any kind of concept, and you have to just write the paragraph on it. Open sentences, you can write anything about that thing अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. सेंटेंस इज द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ. आपको सेंटेंसेस छाटनी है, जैसे स्कूल वर्ब हो सकते हैं, सब्जेक्ट सेंटेंसेस हो सकते हैं, या प्रोनाउन के हो सकते हैं. क्लोजिंग सेंटेंस आपको खत्म कैसे करना है किसी स्टेटमेंट को. डिक्टेशन, हमारे जो टीचर्स थे ना बचपन में, हमें बहुत बार डिक्टेशन बोलते थे, जिससे हमारी जो वर्ड वोकैबुलरी है वो ज्यादा बिल्डअप होती है. वी हैव टू लर्न अबाउट द क्लियर प्रोनाउंसिएशन. स्लो स्पीड, कि हम पहले बच्चों को स्लो बोलना सिखाए, दैट हम उनके साथ पेस पकड़ के काम करें. स्पीक आउट. पंचुएशन भी बोले कि बच्चों को पता चले कि यहाँ पे हमने कोमा लगाया है, यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेटरी साइन लगाए हैं. नोट टेकिंग, कन्वर्सेशन डायलॉग करा सकते हो. हैंड राइटिंग इंप्रूव करा सकते हैं एट अ प्राइमरी लेवल, क्योंकि अपर प्राइमरी में जाके बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि बच्चा अपनी हैंड राइटिंग सुधार पाए. एंड लर्नर ऑल्सो नीड टू बी टॉट इन टू फिल्टर आउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जैसे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो हम उनपे स्प्रेस कर सकते हैं, हम उन्हें बार बार बता सकते हैं, एंड जो अनइम्पॉर्टेंट चीजें हैं हम उनसे दूर रह सकते हैं. And last one, organizing the speaker sentences graphically in the effect of note taking. We can make the graph and pictorial form to express the writing expressions very clearly. Increasing and guiding self. अब खुद को रीडिंग के लिए कैसे गाइड कर सकते हो? सबसे पहले तो यही है, टीचर्स को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए क्लास में कि रीडिंग हैव टू मेक द एंजॉयमेंट टास्क, जिसमें बच्चे प्लेजर के साथ राइटिंग कर सके इंटरेस्टिंगली. एंड इन फैक्ट ऑफ countries like England, there is a no lesson completed in the country, but many of the learners are reader. तो ये वैसी बात है कि जहाँ पे बच्चों को रीडिंग करने के लिए बिल्डअप कराया गया है. ऑलमोस्ट एवरीबडी इज रीडिंग अ बुक और न्यूज़पेपर. बहुत बार बहुत सारे लोगों को ये हैबिट होती है कि वो जर्नी करते हुए न्यूज़पेपर या बुक को रीड कर रहे होते हैं. रीडिंग फॉर प्लेजर कैन बी fostered in a various way, providing a rich print environment. प्रिंट इतना अच्छा रखो या
प्रिंट आपको बोल्ड लेटर, ग्राफिकल, क्रिएटिवली रखना है कि बच्चे जो है अट्रैक्ट हो। चिल्ड्रंस लिटरेचर, छोटे छोटे बच्चों की, जैसे हम छोटे बच्चों की बात करते हैं ना, तो उन्हें कहानियां पढ़ा के बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है। तो लिटरेचर हमें ऐसा बिल्ड करना है कि जो वो छोटे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो। आप कॉम्प्लेक्स नॉवेल्स बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो। वीकली टास्क हैज टू बी प्रोवाइडेड, सेट एन एग्जांपल, give the illustration very clearly, guiding the reading, and book fair also organized to make the pleasure reading fostered in the child. Next, lesson planning. We all are aware with the lesson planning. First of all, we have the journal objective in a lesson planning. जनरल ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं, फिर आते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, देन आते हैं हमारे जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं कि आप क्या यूज करोगे, जो हमारे टीएलएम है या फिर मटेरियल रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे लिखोगे। देन आती है हमारी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग पीकेटी, फिर इसके बाद आप अनाउंसमेंट कर देते हो टॉपिक का। देन वी आर गोइंग फॉर द प्रेजेंटेशन सेशन, एंड आफ्टर प्रेजेंटेशन वी हैव टू रिकैप आवर लेसन प्लान, एंड आफ्टर रिकैपिंग वी हैव टू गिव द होमवर्क टू द चाइल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द जर्नल ऑब्जेक्टिव। द जर्नल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंग्लिश literature, English reading and English writing is that we have to familiar with the writing and reading skill of the English, and we have to make our child very confident to speak English, and also we have to build a clear pronunciation and vocabulary of a child to read the by reading the English। और क्या हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आपका हो सकता है आप जिस भी स्पेसिफिक चैप्टर के लिए पढ़ा रहे हो, लाइक माय स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न अबाउट द एसेंशियल ऑफ इंग्लिश लर्निंग, कम्युनिकेशन ऑफ इंग्लिश लर्निंग, दीज काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव आर द स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव। इन प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग you have to ask 4 to 5 या 6 to 7 question from the child, and where the learners of our class, the students of our class have the no clue about the topic, and where they are stop responding, तो आपको अपना टॉपिक जो है अनाउंस कर देना है। आफ्टर presentation we also have to engage the child, and our presentation is like not the lecturing, बट हमें बच्चों से ज्यादा कनेक्ट होना है, एंड वी हैव टू रिकैप आवर लेसन प्लान टोटली एट द एंड ऑफ द लेसन प्लान, एंड इसके बाद आपको होमवर्क प्रोवाइड करना है कि जिसे बच्चा अपने घर से सॉल्व कर पाए आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द होल प्लान, होल लेसन। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है? आपने अप्रोचेस के बारे में जाना इंग्लिश थर्ड यूनिट में कि कैसे आप कौन से अप्रोच कौन से टाइम पे यूज कर सकते हो, कब आप सिचुएशनल अप्रोच यूज करोगे, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच कहाँ यूज करेंगे, स्ट्रक्चरल चीजें क्या होती हैं। वी आर बिल्ड आर पूरा कंस्ट्रक्शन अबाउट द सिनेरियो ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कैसे आएगा, कब आपको कोमा यूज करना है, क्या मिसस्पेल चीजें हैं, व्हाट इज द ओरल कॉम्प्रीहेंशन, या फिर आपका रिटन एक्सप्रेशंस कैसे दोगे, इंग्लिश लर्नर को और कैसे हम बिल्डअप करा सकते हैं, एंड इजी एंड फन कैसे बना सकते हैं, एंड वी हैव टू क्रिएट द सिचुएशन इन विच लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ओन लर्निंग, जिसमें आप क्रिएटिव लर्निंग भी करा सकते हो। सो इट इज ऑल अबाउट आवर यूनिट 3 ऑफ इंग्लिश लर्निंग। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन कमेंट डाउन, and if you are finding my videos are informative, then do like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Bye bye, take care.